कृष्ण जी की, जिसमें अर्जुन बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, है ना। तो अगर अर्जुन अपना कर्म करते रहे तो वो एंड में जो है पास तो हुए, एज कम्पेयर टू अगर वो अपना कर्म ही नहीं करते तो फिर फल की ही चिंता करते रहते, तो उनको कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। Correct. Amazing. Hello everyone. Welcome to Arjuna Group's new show, Success Tips from Topper's Lips. I'm Shweta, a volunteer of Arjuna Group since last 5 years in the service of student community. As you all know that in this show, we interview one of the toppers. So today also we have with us Miss Harshita Oja. She has secured state rank 2 in class 10th from Madhya Pradesh board, and later she qualified IIT JEE exam, and this year in 2022 she graduated from IIT Madras. So let's welcome Harshita. Welcome Thank you. Harshita. Yeah, it's really great pleasure to have you on our show. Thank you, Shweta. Thank you for inviting me and giving me the opportunity to speak here. Yeah, a quick, like you have already given an introduction about me. So yeah, let's begin. Yes. So you have chosen the topic stress management, right? आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक चूज किया है, एंड मेजरली मैं ये बोलना चाहूंगी रीजनल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए दैट ये इंटरव्यू जो आज हमारा होने वाला है वो रीजनल बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, राइट? बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट? So Harshita, yeah. So let's begin. So I want to ask, like, how are we going to spend our next 15 to 20 minutes? So there's a story behind this interview and all of this. Uh, like when Arjuna Group approached me for this interview, I did not have any clue of why am I giving this interview or something. And in the meanwhile, I got the information from one of my like friend that my school, Carmel Convent High School, is getting shut. So basically, my school has two branches, Hindi medium and English medium. And since Hindi medium, like generally not many students go these days. Everyone prefers like English medium school, so they are shutting that branch down. And to like to publish my voice, I found that this would be a good opportunity to speak who like for the people who are like in class 10th and do like entering into 10th board. So you want to help those students who are from Hindi medium so that they also can do something in their lives, isn't it? Yeah. Yeah. Okay. So I want to ask you the next question. आपसे next question मैं पूछूंगी कि क्या challenges, what are the challenges which students studying in regional languages face which other students don't face? मतलब जो स्टूडेंट्स रीजनल बोर्ड स्कूल्स में पढ़ते हैं, जैसे आपने एमपी बोर्ड में पढ़ा, यूपी बोर्ड होता है, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं हमारे इंडिया में, तो वहां से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं जो शायद से नॉर्मल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को नहीं फेस करने होते? Yeah. So like there are two major factors behind this. तो पहली चीज तो है लैक ऑफ कस्टमाइज्ड लाइक कंटेंट अवेलेबल. तो अगर अभी हम देखें यूट्यूब पर लाइक देर आर वेरियस नंबर ऑफ वीडियोज अवेलेबल, ठीक है. बट जब हम देखते हैं पर्टिकुलरली फॉर एमपी बोर्ड क्लास 10th syllabus या फिर कुछ भी exercise, we don't find it, right? If you go search RD Sharma this particular exercise solution, you will like quickly find 10 links. तो जो एक customized content है वो नहीं है. Second चीज़ है lack of awareness. तो for example अगर content है भी तो हम लोग वो efforts नहीं लेते हैं, right? कि जा करके उसे सर्च करें, उसको मतलब उसको ढूंढे इंटरनेट पे और उसको पढ़ें. हाँ. तो ये दो मेजर टॉपिक मतलब मेजर फैक्टर्स है, आई वुड से. ओके. सो नेचुरली थर्ड क्वेश्चन मेरा ये होता है कि
ये स्टूडेंट्स जिनको ये चैलेंजेस फेस करने होते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स क्या करें? Like, what should these students do? Like, what do you want to say to them? I think for like to answer this question, I think self belief is very important thing. Like you should believe in yourself, for which you are working. Or मतलब I would just like to give a personal example here. कि even I did not like tend to perform or like do good in this exam, but then what happened, like during my time I used to read newspaper, and one day यही 10th क्लास के बोर्ड की टॉपर की एक न्यूज आई थी पेपर में. तो उसमें ये लिखा हुआ था कि पूनम गोरे ने टॉप किया एंड शी यूज्ड टू स्टडी आउटसाइड अ स्मॉल हट, और उनके घर पे देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, और उनका जो घर था वो रेलवे ट्रैक के पास ही था. तो सोचो कितनी ट्रेन जा रही है, कितना शोर हो रहा है वहां पे. तो इसने मुझे मतलब इस चीज से मैं काफी प्रभावित हुई, और मुझे ये बिलीव आया कि अगर वो कर सकते इतने नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी, देन व्हाई कैन आई नॉट डू दिस. मतलब व्हाई कैन आई आल्सो लाइक if not like top the exam, but like do good in the exam, because it was the first board exam I was appearing for. तो ये जो believe है ये होना चाहिए. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको अभी तक आपने क्लास 10th में, लाइक मैं बोलूंगी 10th के पहले आपने न्यूज़पेपर में रीड किया और आपको वो टॉपर का नाम अभी तक याद है. दैट इज सरप्राइजिंग मी एक्चुअली. आप इतने इंस्पायर हुए उनकी स्टोरी से कि इतने डिफिकल्टीज होने के बावजूद उन्होंने कर लिया. सो है ना, तो व्हाई कांट आई. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस. सो तो आपके स्टोरी से और जो आपने बताया है ना, जिनका एग्जाम्पल शेयर किया, इनके स्टोरी से भी और आपके स्वयं के स्टोरी से भी मुझे ये समझ में आता है कि सेल्फ बिलीफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंट और हार्ड वर्क और इवन बेस्ट स्कूल और बेस्ट कोचिंग. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? Personally, I don't think even I'm a very confident person. I don't think I have self belief. But then, like, once you think of doing something, it naturally comes up to you. तो जो mental state को खुद से थोड़ा strong करना पड़ता है, then I think you can do it. मतलब even if you don't succeed in one go, ठीक है, मतलब just have the courage to perform good. So basically, a funny story also happened with me in my 10th grade. One day I was sitting with my father, and I generally told him कि पापा अगर मेरा इस बार अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो आप मुझे दोबारा अपीयर होने दोगे क्या एग्जाम में. तो मतलब मुझे ये था कि अगर मेरे 70-80% आएंगे तो मैं फिर से लिखूंगी, और फिर मैं एटलीस्ट 85% तो लेकर ही आऊंगी. तो बस यही था कि मतलब इवन दो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, बट आई वाज डिटरमाइंड दैट टाइम कि अगर नहीं आएगा तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. और आपने कर दिखाया. एक्चुअली आपका परसेंटेज मुझे पता चला 98%, 98 पॉइंट समथिंग इन क्लास 10th, राइट? Yeah, so that's why you got state board second, state rank second. Amazing, amazing. First attempt में ही कर लिया आपने. Because you had self belief, although you didn't had the best resources probably, still because you had self belief you could do it. Amazing, बहुत अच्छा. Okay, next question is, what do you want to say to students who still think that I won't be able to get success, I can't do it, my situation won't allow me to get success? मतलब आपका स्टोरी है, ठीक है, सुना, बहुत अच्छा, मगर मैं नहीं हो, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, अभी नहीं हो पाएगा. मुझे लगता ही नहीं है कि मतलब उनमें कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाया है अभी तक, है ना. तो वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, आई वोंट बी एबल टू, मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट है ना, मुझे सक्सेस नहीं मिल सकेगा. सो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? तो अगेन टू पॉसिबिलिटीज, फिर से हम दो पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं इस आंसर को इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, कि या तो हम ट्राई करें या तो हम ट्राई नहीं करें. फिर अगर हम ट्राई करते हैं तो अगेन दो पॉसिबिलिटी, या तो हम पास हो जाएंगे या तो हम फेल हो जाएंगे, ठीक है. और अगर हम ट्राई नहीं करते हैं तो हमारा पास होना तो उसमें बनता ही नहीं है, तो 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन दैट, है ना.
जबकि अगर हम ट्राई करते हैं तो यहाँ पर 50% पॉसिबिलिटी है कि हम लोग पास हो जाए। तो वाई नॉट लाइक ऐसा ट्राई करके फेल होना रादर देन नॉट ट्राइंग, क्योंकि वहां पर अगर हम ट्राई करके फेल होते हैं तो पॉसिबिलिटी तो है ना पास होने की, तो फिर क्यों ना ही ट्राई करें ऐसा। सिमिलरली ऐसा जब हम बात कर रहे थे तो एक स्टोरी है अर्जुन की और कृष्ण जी की, जिसमें अर्जुन बोलते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि अपना कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, है ना। तो अगर अर्जुन अपना कर्म करते रहे तो वो एंड में जो है पास तो हुए, एज कम्पेयर टू अगर वो अपना कर्म ही नहीं करते तो फिर फल की ही चिंता करते रहते तो उनको कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। Correct. Amazing. You spoke very wonderfully that how Krishna also encourages Arjuna, है ना? So to do his best and forget about the result, right? Yeah. Because yeah, so doing our best is what is there in our hands, and we must focus on that more rather than thinking, oh, what will happen? This will happen, that will happen. That's another thing. That's another part of the story which is not in our hands. So what's there in our hands? Firstly, we should think about that. Amazing. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग द बुक द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड वुड यू लाइक टू रिकमेंड इट टू अदर्स? तो आपने आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बुक पढ़ी और आपको कैसी लगी, और क्या आप दूसरे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे जिनको प्रॉब्ली मतलब जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने वाले हैं या बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं? So yeah, I gave the read to the book, The Art of Concentration in the Age of Distractions, and indeed it took me time to read the book. But when I started reading it, I actually got hooked up, and I read like 6 chapters in one go. And so the I would just like to talk about the part which really got me interested in the book, like which I never read before. So it was about the story. It was the first chapter part itself, where a boy comes to his friend's house saying that he would like to discuss something from academic curriculum and also will have the dinner. And he tells his friend that his mother did not cook good food, and hence he is here at his house. So the although his mother was a like used to cook very good food, but then she was very much distracted on that day to watch her serial, and she added like more salt in the curry. And the book says distractions are the reason for the underperformance of even those who are talented. This was the line which just blew my mind, and it was really good reading this. So yeah. हाँ आप बोलते हैं, करेक्ट, आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला वहां पर कि डिस्ट्रैक्शन इज अ चॉइस, राइट? आपने वो टॉपिक जो पढ़ा, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन इज अ चॉइस, है ना? वी माइट, जैसे वो मदर जो थे उनको कुकिंग आता था बट वो डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से सॉल्ट ज्यादा डालते हैं, है Yeah. ना? सिमिलरली स्टूडेंट्स टैलेंटेड होने के बावजूद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, करेक्ट? और उसकी वजह से प्रोबेबली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, करेक्ट? सो यू लाइक द बुक, आपको अच्छा लगा, एंड आप रिकमेंड करेंगे कि हाँ स्टूडेंट शुड रीड सो दैट एटलीस्ट अपने गोल पे वो फोकस रहकर जो है अपना गोल अचीव करें। Yes. Yes. या Definitely. ओके Yeah. ओके, सो थैंक यू वेरी मच हर्षिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुनकर कि कैसे आप बहुत इंस्पायर हुए, है ना? फ्रॉम अ न्यूज़पेपर आर्टिकल आल्सो यू गॉट इंस्पायर्ड एंड यू हैड दैट सेल्फ बिलीफ ऑन यू दैट आई वांट टू डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट, आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट, and you achieved it by doing of course hard work and distraction free environment में आपने studies किया, है ना? इस तरह से आपने गोल अचीव किया, एंड देन आपने आईआईटी मद्रास में भी एडमिशन लिया, दैट इज रियली अमेजिंग, एंड थैंक यू सो मच। एंड रिक्वेस्ट है मुझे मेरा सारे स्टूडेंट से जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं हर्षिता के साथ, कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है
तो प्लीज शेयर करो अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लिख सकते हैं आपको क्या सुनना है टॉपर्स से, है ना, कौन सा टॉपिक आप हमको भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। And we'll get back to you in the next episode of Success Tips from Topper's Lips. And till then, thank you. And thank you very much, Harshita, for giving your valuable time and giving your valuable tips to the students. रीजनल स्टूडेंट्स को, रीजनल बोर्ड के स्टूडेंट्स को हेल्प मिले इसके द्वारा, एंड वो लोग भी अपना गोल को हाई रख पाए। सो उसमें ये हमारा इंटरव्यू हेल्प करेगा, तो इट विल बी रियली मतलब अ गुड थिंग, है ना। आपका भी जो आप वॉइस बनना चाहते थे, है ना, फॉर सो मेनी पीपल। सो थैंक यू फॉर दैट। Thank you, Shweta. Thank you so much for the opportunity. Yeah.